Good morning, students. Today we are going to discuss about the affinities and systematic position of the Eurochordate. यूरोकोडेट्स में मेनली जो एग्जाम्पल स्वरूप जो बात उनके बारे में बात करेंगे वो हैं हम हर्डमानिया के मेन एग्जाम्पल्स में। इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के रूप में देखा जाए, सिस्टमैटिक पोजीशन जो है, सबसे पहले लामार्क ने 1816 में फर्स्ट कॉल्ड दम टूनिकेटर। इसके बाद क्यूवियर ने 1817 में क्लासिफाइड अलोंग द मोलस्का, बट लामार्क put them between Radiata and Burmese. Then Milne Edwards created the class Molluscoidea to include Bryozoa with tunicata. उसके बाद 1853 में हक्सली में इसे ब्रैकियोपोडा में रखा, और सबसे लास्ट में Kowalski put an end to the controversy. He described the development of simple Ascidian and established their chordate nature. Kowalski ने 1886 में Ascidian tadpole larva के डेवलपमेंट बारे में बताया और उसके chordate नेचर बताया, and he put the animal into the chordate group. तो सबसे पहले जो टॉपिक है, यानी सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करनी है वो है एफिनिटीज़ विद नॉन कोडेट। एफिनिटीज़ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ में हैं, सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, जैसे पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड यूरोकोडेट्स आर ससाइल इन नेचर, ससाइल नेचर के। फिल्टर फीडिंग, मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडिंग, respiration through a water current is parallel with the sponges, mollusk and lophophorids. इनके समानता है फिल्टर फीडिंग, respiration. Then budding chain of new coelentrates, larval eyes and otocyst, which are somewhat similar to that of the invertebrate. Next, that is the colonial nature, colonial mode of life, simple and composite. Fixed ascidian is observed in number of invertebrates. और इंटेस्टाइन में जो डिफ्लोसोल पाए जाते हैं टू इंक्रीज द एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ये यूरोकोडेट्स के डिफ्लोसोल के समान ही है। तो इनकी जो सिमिलैरिटी से कंक्लूशन में कहा जाए तो similarities are only due to the similar mode of life and parallel evolution. Next है affinities with the chordates. तो affinities with the chordates में आप लोग जानते हैं chordate का जो 3 basic characteristics है, जैसे rod like notochord forming axial skeleton of the tail, dorsal tubular nerve cord, gill-slit pharyngeal wall. ये भी कंक्लूशन में कह सकते हैं दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज बोथ यूरोकोडेट्स एंड अदर कोडेट्स है ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से या पूर्वज से इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए कहा जाता है। ओके, ना एफिनिटीज, नेक्स्ट पॉइंट है एफिनिटीज विद द कोडेट्स, हेमीकोडेट, affinities with the hemichordata. That is, structural plan of the pharynx is perforated by gill slits and having the similar accessories. यानी जो हेमिकोडेट के pharynx के pharyngeal जो प्लान है, स्ट्रक्चरल प्लान है, और उसमें उपस्थित जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक समान है।
and the development of the central part of the nervous system. Next, restricted notochord. नोटोकोड जो है यूरोकोडेट्स में टेल रीजन में है, बट हेमिकोडेट्स के अंदर वो शरीर के जो एंटीरियर पोर्शन है, प्रोबोसिस उसको कहा जाता है फर्स्ट पार्ट, उसी में उपस्थित, यानी दोनों में रेस्ट्रिक्शन है नोटोकोड में, जो कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर पार्ट। इसमें भी ऑब्जेक्शंस है और the two groups have important differences भी हैं, okay? यानी Belnoglossus lives in burrows but Urocodates may be fixed, inert or pelagic. Hemicodate body is divisible into proboscis, collar, trunk, which is not found in the Urocodates. Urocodates के अंदर इस तरह की बॉडी की डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एक मेजर पोर्शन है और एक फुट रीजन। नेक्स्ट, ट्रू नोटोकोड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ एसिडियन टैडपोड लार्वा। इसमें एसिडियन टैडपोड लार्वा में एक ट्रू नोटोकोड उपस्थित होता है। Whereas in hemicodate, that is the buccal diverticulum, this is no longer considered as the notochord. वो ये notochord के समान नहीं मानते। Thus even inclusion of hemicodates as true codates has become doubtful, so that they are considered nowadays an independent non-codate phylum, एक independent non-codate phylum के रूप में अब रखते हैं। फिर भी इन दोनों में जो affinities या इन दोनों की जो similarities है, that is groups are probably because of their remote phylogenic relationship with the ancestral common ancestor. इनके जो ancestral, ये देखो ancestral common stock है, इसी की वजह से हो सकता है, because of their remote phylogenic relationship with the ancestral common stock. Next, the affinities with the cephalocodates. Cephalocodates के साथ में भी इसके affinities है, that is we'll discuss one by one. Ciliary filter feeding and food concentration mechanism and respiratory mechanism, दोनों में यानी cephalocodates के अंदर भी जो सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग है, फूड कलेक्शन है, जैसे वीलम की सहायता से, ओके, वीला टेंडकल्स की सहायता से, और इसी तरह से जो यूरोकोडेट्स के अंदर ब्रैंकियल टेंडकल्स प्लस सीलिया, इनकी सहायता से जो फीडिंग मैकेनिज्म हो, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हो, वो एक समान दिखाई देते हैं। इनमें दोनों में सिमिलैरिटीज। लार्ज फैरिंग्स विथ एक्सेसरीज, जो फैरिंग्स की साइज़ देखा जाए वो भी काफ़ी बड़ा होता है, और साथ में इनमें जो फैरिंग्स के अंदर जो एक्सेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो भी इसी प्रकार के, जैसे एंडोस्टाइल हो, ओके, एंडोस्टाइल हो, डोर्सल लामिना हो, हाइपोफैरिंजियल ग्रूव हो, एपीफैरिंजियल ग्रूव हो, इस तरह से जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है वो भी दोनों में सिमिलैरिटीज रहती है। और ब्रैंकियल टेंडकल्स एंड वीलार टेंडकल्स, ब्रैंकियल टेंडकल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द वीलार टेंडकल्स ऑफ द सेफेलोकोडेट्स। करीब आपको मैंने पहले भी समझाया है, अबाउट 64 टेंडकल्स ब्रैंकियल टेंडकल्स आर सीन इन द केस ऑफ द हर्डमानिया, और इसी तरह से 10 to 11 पेयर्स वीलार टेंडकल्स जो हैं वो भी सेफेलोकोडेट्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है एंडोस्टाइल एंड एसोसिएटेड पार्ट्स। एंडोस्टाइल जो है शरीर के फैरिंग्स के वेंट्रल साइड की ओर एक ग्रूव के समान पाए जाते हैं, और उसके अंदर उपस्थित जो संरचना है करीब करीब उसी में भी सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट दैट इज डोर्सल नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर नोड, नर्व कोड एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा in addition to that there are the larval affinities also. Larval affinities में you can say identical stages of the development, जो early stages है उनमें भी similarities है। tail with median vertical fins without the fin rays, tail उपस्थित होता है but without the fin rays। then
फैरिंग्स विद एंडोस्टाइल, लार्वा के अंदर भी फैरिंग्स है, फैरिंग्स के अंदर इसमें के साथ एंडोस्टाइल भी उपस्थित है, दोनों में भी लार्वल स्टेजेस में उपस्थित होते हैं। द एट्रियल कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो सिमिलर, बट यू सी देर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑल्सो। देखिए ऑब्जेक्शंस के अंदर अडल्ट से लेकर के अडल्ट स्टेजेस से लेकर लार्वा की भी है और मेटामॉर्फोसिस तक का इसमें डिफरेंसेस है। अडल्ट इन both the cases we can say what are the differences, urochordates and also the cephalochordates, urochordates and cephalochordates. See, adult they are sedentary in urochordates, but cephalochordates are free swimming forms. Then notochord, that is absent in adult in urochordates but present in cephalochordates. Then the nerve cord, that is absent in adult but present in cephalochordates. Test and heart, test and also heart, they present in urochordates but absent in cephalochordates. And the liver you see present in urochordates, a well developed liver is present in the case of the urochordate, and there in the case of the cephalochordates, that is the midgut diverticulum. Now the excretory organs we can say that is the nephridia, that is absent in urochordates but present in the case of the cephalochordates. Now we are discussing the metamorphosis. A particular type of metamorphosis is seen in the case of the urochordate ascidian tadpole larva, that is the active free swimming larva transformed into an inactive sedentary adult and sessile form. But in the case of the cephalochordates, the मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण जो है वो प्रोग्रेसिव प्रकार के हैं। ओके, अब इनके जो रिजेम्बलेंसेस हो दैट पॉइंट आउट अ प्रोबेबल रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री, अगेन दिस द कॉमन एंसेस्ट्री। देयर डिफरेंसेस डिमांड दैट टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इन से टू सेपरेट सबफाइला अंडर सबफाइलम कोर्डेटा। जो सिमिलैरिटीज़ है, रिजेम्बलेंस है, वो हो सकता है कॉमन एंसेस्ट्री के कारण, बट उनकी डिफरेंसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं उनके टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में दो सेपरेट सबफाइला में रखा जाए। ओके, नाउ एफिनिटीज विद द वर्टिब्रेट, एफिनिटीज विद द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के एफिनिटीज में अगेन वो टिपिकल जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एसिडियन टैडपोल लार्वा कैन बी कंपेयर्ड विद द लार्वल फिश। It resembles higher chordates in having dorsal tubular nerve cord, axial skeletal notochord, pharyngeal gill slits, post-anal tail covered by vertical caudal fin. Okay, type of cleavage and gastrulation. Okay, besides this adult characteristics, some adult ascidian characteristics. Some ascidian characteristics are also similar to that of the vertebrates. That is, neural gland is homologous with vertebrate pituitary. जो न्यूरल ग्रंथि हैं यूरोकोडेट्स के अंदर पाए जाते हैं वो वर्टिब्रेट के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के समान हम समझाते हैं। एंडोस्टाइल विथ वर्टिब्रेट थायरॉइड, जो एंडोस्टाइल पैरेंट्स के अंदर के रूप में वेंट्रल पार्ट की ओर पाए जाते हैं वो थायरॉइड ग्रंथि के समान समझाते हैं। टिफ्लोसोल कंपेयर विद द इंटेस्टाइनल स्पाइरल वाल्व ऑफ इलास्मोब्राइन फिशेस। इलास्मोब्राइन फिशेस के जो स्पाइरल वाल्व है वो यूरोकोडेट की टिफ्लोसोल के समान यह समझाते हैं। अब कंक्लूशन में ये है कि वी कैन से कि इट इज़ ऑब्वियस दैट यूरोकोडेट्स आर प्रिमिटिव एंड डिजेनरेट डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्ट्रल कोडेट्स। यूरोकोडेट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, डिजेनरेट डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्ट्रल कोडेट्स। टैडपोल लार्वा दैट रिप्रेजेंट्स द relic of free swimming ancestral chordate, that is a relic of the free swimming ancestral chordate, इस संस्कृति के रूप में मान सकते हैं। फिर भी इसमें जो डिजेनरेशन है लार्वल फॉर्म्स में, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन,
ड्यू टू सेडेंट्री एंड ससाइल मोड ऑफ द अडल्ट लाइफ। इनमें से सेकेंडरी मॉडिफिकेशन के रूप में इनमें जो चेंजेस आए हैं वो हो सकता है उनकी सेडेंट्री और ससाइल मोड ऑफ अडल्ट है, अडल्ट की जो स्थानबद्ध एवं ससाइल लाइफ के कारण हो। ओके, और ये टॉपिक याद करें अच्छी तरह से और लर्न करें।